because Mother's Day is just around the corner, we thought this is the perfect time to call over and have a good conversation with Miss Samina Amjad. She is the mother of the late Arfa Karim Randhawa. आपको पता है Arfa Software Technology Park. We are housed here. This is a part of ITU's identity, and the name holds a very special place in every Pakistani's heart. Parenting is not about 1 month, 1 day, 1 year. It is continuous process. वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. What are the few things every parent needs to be careful about? Conscious parenting आजकल बहुत जरूरी है. Absolutely. This is need of the time. आप जो चाह रहे हैं ना कि आपके बच्चे करें या रोकना भी चाह रहे हैं, तो फिर वो आप खुद भी ना करें. You cannot tell them only. You have to do it. You have to demonstrate it basically. बच्चियों की ट्रेनिंग की, और इसमें कोई बहुत ज्यादा ना आपके पास कोई बहुत ज्यादा पैसे होने की जरूरत है, ना कोई बहुत ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है. इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल. मैंने अरफा को हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, आई एम योर मदर, लेट मी नो, मुझे बताओ, मैं हूँ. मैं समझती हूँ कि आज जिस मुकाम पे भी मैं हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ करना साहब. अगर वो मुझे उस तरीके से गाइड ना करते हैं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी ना देते हैं, मेरे पे ट्रस्ट ना करते हैं, मुझे वो कॉन्फिडेंस ना देते हैं, तो मैं तो कुछ भी ना कर पाती. हम एक एक्टर की तरह हैं, हमने वो सारे रोल निभाने हैं. स्क्रिप्ट हमारे पास है, अब उसमें कितनी जान डालनी है ये हम पे डिपेंड करता है. किस तरीके से वो कर जाना है. माँ के जो इमोशंस बेटी जो शेयर करती है, वो कहीं ना कहीं माँ ही होती है, उसी की कंटिन्यूटी है. और अरफा के ख्वाब, अरफा के मिशन क्या थे? टू मेक पाकिस्तान डिजिटल, डिजिकॉन वैली इन पाकिस्तान. उसके बड़े बड़े ख्वाब थे. इन बच्चों को जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, इनको उसी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे जो यहाँ पे है, तो प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान में नहीं आ सकती. और वो 75-70% है, उनके बारे में सोचना वही अरफा का एम था. उनके बारे में काम करना वो अरफा करीम फाउंडेशन का एम है. Assalamu alaikum, khawaateen और हजरात, boys and girls, everybody watching us here on this channel. Thank you very much for watching this space. हम जनाब ITU से लाते हैं आपके लिए interesting sessions in the form of a podcast, कि जहाँ कभी बात करते हैं अपने faculty members से, students से, staff members से, तो कभी बहुत ही खास मेहमानों से भी. तो आज जिस मेहमान को हमने दावत दी है ITU के स्टूडियो में, इनसे मिलने का, इनसे मुलाकात का बड़े अरसे से हमें इंतजार भी था. बातचीत होती भी थी तो मुख्तसर होती थी, बट थैंकफुली आज जनाब, because Mother's Day is just around the corner, we thought this is the perfect time to call over and have a good conversation with Miss Samina Amjad. She is the mother of the late Arfa Karim Randhawa. आपको पता है Arfa Software Technology Park. We are housed here. This is a part of ITU's identity, and the name holds a very special place in every Pakistani's heart, or in fact any IT enthusiast's heart all over the world. क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जनाब जो पाकिस्तान की शान है. This name has brought pride to Pakistan time and again, resides in our heart not only today but will keep on residing forever. Assalamu alaikum Samina ji. वालेकुम अस्सलाम. और थैंक यू वेरी मच के द वे यू इंट्रोड्यूस्ड एंड द वे यू आपने अरफा के बारे में जितना कुछ कहा, जितना कुछ बोला, और आप ये देखें कि whenever there is any invite for me, so I always think that this is an invite for Arfa, so that's why she's always with me. Absolutely जी, that's very beautiful. Arfa resides in our hearts as well. आप यकीन कीजिए हर कम्युनिकेशन में, हर ईमेल में जहां हम अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिखते हैं, every time we write it, we hear it, it's a reminder of the great achievements Arfa had achieved in her life, and with that obviously the pride she brought back to Pakistan. आपका तारुफ मैंने अरफा की वालदा के तौर पे तो ज़रूर करवाया, but it also makes me very happy and I feel honored introducing you as the chairperson of Arfa Karim Foundation and Arfa Karim Technology Incubator. Am I right? Yes. तो आपसे आज बातें इतनी सारी हमने करनी है, उसमें हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली अरफा की ज़िंदगी के बारे में हम बात करें. मदर्स डे के हवाले से आपका सफ़र एज अ पेरेंट टू अ जीनियस चाइल्ड कैसा रहा, उसके बारे में बात करें. द करंट वर्क, द अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग विद अरफा करीम फाउंडेशन, उस पर भी हम ज़रूर चाहेंगे कि आप रोशनी डालें, और फाइनली कंक्लूड करेंगे कुछ स्पेशल मैसेजेस के साथ. तो आगाज़ करना चाहूँगी, पहले तो मुझे बताइए अरफा, नाम इतना प्यारा है, नाम इतना खूबसूरत है. Who chose the name? Who named her? अरफा का नाम अरफा के दादा ने रखा था बेसिकली, क्योंकि अरफा का नाम का मतलब ही ये है कि आला व अरफा, बहुत सबसे बुलंद, सबसे आला. सो अरफा करीम, करीम जो है वो रब का नाम है. बेशक. तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो रब की जात जो है वही सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है.
तो अरफा का नाम अरफा के दादा ने रखा और उन्होंने ये कहा कि ये अरफा ही होगी, आला वली अरफा हो तू। और उसने साबित किया, नो डाउट, कि एक देखिए ना, आज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और बहुत सारे लोग जो सुनते हैं, देखते हैं और जो पेरेंटिंग के बारे में स्पेशली दे आर कॉन्शियस। सो मैं एक बेटी के नाम पे पहचाने जाती हूँ, राइट? कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आज की बात नहीं है, अरफा बहुत छोटी होती थी। शी वॉज अ हाई अचीवर। She was true. She was very good student, or not only in academics, but if I talk about the extracurricular activities, she was excellent in that as well. She was a very good singer. कहीं नात है, competition है. Masha. There are so many, activities going on inside the school. तो हर जगह उसने अपने स्कूल को कप ला के दिया। मुझे याद है कि उन दिनों में अब्दुल रऊफ सूफी की एक नात बड़ी मशहूर हुई थी, लम्यात नज़ीर कफ़ी नज़र। वहाँ पे अरफा ने उन्हीं के सामने, ही वाज द जज, उन्हीं की नात को डिफरेंट स्कूल्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और अरफा ने भी हिस्सा लिया। तो फैसला होने से पहले अम्मी जी ने मुझे कहा कि तुम देखना, ये फर्स्ट प्राइज अरफा को मिलेगा। मैंने कहा अम्मी जी आपको कैसे पता है? तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि बेटा जो मैं देख लिया ना, जिस तरह वो सिर मार रहे हैं ना अरफा दी नात सुन के, तो मैंने पूरा यकीन है कि ये ही फर्स्ट प्राइज लेगी। तो वाकई ऐसा हुआ कि अरफा का फर्स्ट प्राइज था। बताने की बात ये है कि बच्चों के लिए स्पेशली सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होते उनकी जिंदगी में, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको जिंदगी की हर मैदान में आगे होने की जरूरत है, Abs- हिस्सा लेने की जरूरत है। जब तक आप हिस्सा नहीं लेते हैं, जब तक फेल या पास या एक्सीलेंस और नो एक्सीलेंट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप किस चीज में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल, ये मैटर करता है। तो बड़ी आई अच्छी। थिंक कि बच्चों को माँ बाप को गाइड करना चाहिए। जिस तरीके से स्पोर्ट्स होती हैं तो वो आपको कितना कुछ सिखाती हैं। कहने को ये गेम है, वो बच्चा किस हद तक परफॉर्म कर पाता है डजंट मैटर, लेकिन उसके हिस्सा लेने से जो टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, जो दूसरे को चांस देने का, हेल्पफुलनेस का कॉन्सेप्ट आएगा, जो फियर को सामने से चैलेंज फेस करने का कॉन्सेप्ट आएगा, वो सब कुछ टीम सिखाती है आपको। एब्सोल्युटली। खेलें सिखाती हैं, स्पोर्ट्स सिखाती है। और कभी-कभार मुझे लगता है बच्चे का किसी स्पोर्ट में हार जाना शायद उसको जीतने से ज़्यादा सिखा देता है। यस, हार जाना आपको बताता है कि फिर से कैसे खड़े होना है। बिल्कुल। और हमारी जिंदगी में कभी भी परफेक्शन तो है नहीं है, स्मूथ है नहीं है, अप्स एंड डाउन्स, एवरीथिंग इज देयर। और बैलेंस है। बैलेंस एक है। बच्चा जब सीखता है कि अच्छा मैंने क्लास का काम भी नहीं छोड़ सकता, मगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हाँ, मेरा वहां भी मौजूद होना जरूरी है। बैलेंसिंग जिंदगी में बड़ी जल्दी उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा दी जाती करवा है। दी जाती है, और बिल्कुल। ये बैलेंस मेरे ख्याल से रहते दम तक फायदा ही देता है, बिकॉज बी इट वन थिंग और द अदर। हम्म, आप किसी की भी मिसाल ले लें, कोई किसी भी शोबे से फील्ड से ताल्लुक रखता हो, बैलेंस तो हर जगह जरूरी है। बहुत जरूरी है, स्पेशली हाई अचीवर्स के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा ही जरूरी होता है एब्सोल्यूट। वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब मैं बीइंग माँ बात करती हूँ ना, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था कि अरफा को जब इंटरनेशनली एक फेम मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक 2003 2004, बिल्कुल, जब ये उस सेल फोन्स हर हाथ कुछ में नहीं नहीं था। होते थे, किसी और किसी के पास होता था, बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा ही इंटरनेट एक्सेस इतनी इजी कुछ भी नहीं नहीं थी। थी, और it was उस वक्त का something very फेम, exclusive back then। बिल्कुल उस वक्त का जो फेम है वो बहुत बड़ी बात थी कि वो सब शॉक्ड हो जाते थे और सब सरप्राइज्ड हो जाते थे क्या हुआ दुनिया में। आप ये देखें ना कि आज के दौर में भी बच्चा या बच्ची जब फर्स्ट आ जाते हैं तो क्या होता है, कितनी बड़ी सेलिब्रेशन होती है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी फर्स्ट आई है। सो सोचें वो क्या लेवल होगा मेरी खुशी का कि दुनिया में एक बच्ची अपनी पहचान बना के आई। गिनीज रिकॉर्ड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी पेरेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि बच्चा बच्ची जब कामयाब हो जाता है ना, तो उसके बाद उनको जो सिखाने की ज़रूरत होती है या कॉन्शियस होने की जिसको कहते हैं ज़रूरत होती है, वो ये होती है कि हाउ टू मेक बैलेंस, हाउ टू क्रिएट बैलेंस। ट्रू। क्योंकि बच्ची तो उस वक्त हवाओं में उड़ रही होती है, तो ये कौन सा किरदार है जो उसको बताएगा कि ये काम था, हो गया, आगे भी बहुत कुछ है? वो है माँ। बिल्कुल। माँ सिखाती है हम्बलनेस। सिखाती क्या है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि माँ जो चाह रही होती है ना कि उसकी बेटी कैसी बने, उसको खुद वैसा पहले बन जाना चाहिए। ऐसे ही। जब वो वैसी होगी तो शायद उसको इतना बताना ना पड़े, सिखाना ना पड़े, क्योंकि वो फॉलो करते हैं। बेटी स्पेशली, बेटी में तो पूरा रिफ्लेक्शन है। जैसे अब आप अगर मेरी बात समझें
तो अरफा को लोग जो है मेरे थ्रू देखते हैं, उसको मेरे थ्रू जानते हैं, तो मैंने उसका रिफ्लेक्शन भी कैरी किया हुआ है, बीइंग मदर भी और अरफा की माँ होने के नाते। ऐसे ही। सो ऐसे ही बेटियां भी अपनी माँ का रिफ्लेक्शन होती हैं और मैं समझती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटियों की होती है कि क्या चाहेंगी वो, कि कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उनकी माँ के बारे में क्या कहें, बहुत अच्छा कहें तो फिर उसके लिए उन्हें बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही है। सो ये इट्स ऑलवेज अबाउट अ मदर कि बिल्कुल। किस तरीके से। और वो एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम बहुत सारी मामलात हो जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ गलत हो भी जाता है, तो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज एक हिस्ट्री है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे वक्त में आपने कैसे अपना इंटर स्पाउस रिलेशनशिप आपका कैसा था, घर की एनवायरनमेंट कैसी थी। ऐसे ही। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे हर चीज शेयर हो रही होती है, बिल्कुल। आपकी फीलिंग्स शेयर हो रही होती हैं, आपके इमोशंस शेयर हो रहे होते हैं, आपकी वाइब्स शेयर हो रही होती हैं, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और दिस इज अ डेलिब्रेट डिसीजन। मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, घर एक ऐसी जगह लोग समझते हैं ना कि है कि कुछ भी आप कर लें, बाहर फॉर्मेलिटी छोड़ के आएँ, घर रिलैक्स करें, जो आप खुद हैं वो नज़र आएँ। लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने जो किया है, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ऐसे ही है। क्योंकि वाक़ई इट्स हम इट्स कहते कंप्लीटली हैं चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। बड़ी अच्छी एग्ज़ैक्टली बात की आप। हम कहते हैं दर्सगाह पहली जो है वो घर है। हुँ, तो फिर घर अगर दर्सगाह बन जाती है, पहला स्कूल बन जाता हुँ। है, तो फिर डिसिप्लिन तो वहाँ पहले आया ना। ऐसे ही है। तो वहाँ पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट हैं आजकल के। हमारे बच्चे बहुत फ़ास्ट हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल। दे आर। आईटी ने उनकी लाइफ़ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। बिल्कुल एंड लेकिन वेरी रैपिडली आल्सो। रैपिडली यस, लेकिन दिस इज़ अबाउट पेरेंट्स एज़ वेल। ट्रू। इस जनरेशन को अगर हमने गाइड करना है, या मैं तो कहती हूँ गाइड क्या करना है, अब इनके इनके साथ दौड़ना है। ऐसे ही। उसके लिए ज़रूरी है कि माँ-बाप को अवेयरनेस दी जाए कि वो भी हर चीज़ बच्चों के सामने नॉर्मली आपने देखा होगा मदर्स क्या कहती हैं, बेटा मुझे ये करना नहीं आता, ये कर दो, ये आप कैसे करते हुँ। हैं ऐसे? नो, 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 ये ना करें। आप जब ये कहेंगी ना तो बच्चों को आपका वीक पॉइंट मिल गया। उनको पता चल जाएगा हम कुछ भी कर लें, माँ को पता नहीं पता चलेगा। नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं भी आता है, आप कहीं बाहर से सीखें, हुँ। आप अपने यूट्यूब तौर पे से सीखें। टाइप एनीथिंग, वो कुकिंग रिलेटेड हो, हाँ, कोई होम मेंटेनेंस हो, यू टाइप एनीथिंग, आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलेंगी। कोई मिनट 2 मिनट की तो कोई 20-20 मिनट की, बट टॉकिंग बिल्कुल। अबाउट द सेम थिंग। लेकिन बच्चे जो छोटे हुँ, हैं ना, स्पेशली ये मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो जो अभी उस अर्ली कॉग्निशन के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये बात है कि उन्हें ये पता ना चल जाए, उन्हें ये पता नहीं मामा और बाबा क्या ही जानते हैं जो हमें नहीं पता। सो इसके लिए जरूरी है कि कॉन्शियस पेरेंटिंग आजकल बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। दिस इज नीड ऑफ द टाइम। एक तो आपने घर के एनवायरनमेंट की, माहौल की बात की, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेटियों से घर का माहौल बहुत बदल जाता है। जहाँ बिकॉज़ आई नो सेवरल फैमिलीज़ माशाल्लाह, जहाँ सिर्फ़ भाई हैं या बेटे हैं, इट्स अ होल डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। और जहाँ पर एक भी अगर बेटी है, तो आपको उस घर में वो फ़र्क नज़र आता है कि इस घर में एक बेटी ज़रूर है। और अरफ़ा तो माशाल्लाह पाकिस्तान की बेटी हैं, और पाकिस्तान का नाम हर जगह उन्होंने ना सिर्फ़ रोशन किया, अभी भी कितने प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं कहूँगी ग्लोबली वो नाम लिया जाता है, एंड इट ऑलवेज़ ब्रिंग्स such happiness to every Pakistani, I'm sure. My understanding is that you also work as a parent, coach, guide, counselor, maybe. Am I right? यस, यू राइट। अच्छा, lovely. Because हालांकि आपके हालात से एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल या उस लेवल की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मगर जिस तरह आपने बात की 2004 में मीडिया एक्सपोजर, एक बच्चे का घर में जीनियस होना, नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड रिनाउंड होना, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर होना, उसका जो उस वक़्त उस बहुत यंग एज में एक्सपोज़र मिलना, तो एज़ अ पेरेंट आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया, मैनेज किया, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से किया। मगर कहीं-कहीं मुझे सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं कि जब हर घर में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट एक्सेस इज़ अनलिमिटेड, एट टाइम्स देयर प्लेसेस इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सीमलेस इंटरनेट है।
तो कहीं ना कहीं अब बहुत से पेरेंट्स को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां बच्चों को मीडिया एक्सपोजर है फॉर एनी रीजन एट ऑल। वो बच्चा इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो यूट्यूबर हो सकता है, वो व्लॉगर हो सकता है, शायद वो मॉर्निंग शोज में जा रहा हो, रेडियो शोज में जा रहा हो। बट समवॉट अ पार्ट ऑफ योर चैलेंज इज नाउ फेस्ड बाय एवरी पेरेंट, क्योंकि अब हर बच्चे ने, पहले तो था ना कि बच्चा बाहर अगर साइकिल चला रहा है तो नजर रखना, घर में है तो सेफ है। अब ज्यादा फिक्र होती है बच्चा घर में है तो नजर रखना कि वो फोन पर क्या कर रहा है। ट्रू। तो मुझे जरूर कुछ, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, मैं भी चाहूंगी कि आपकी टिप से कुछ फायदा उठाऊं, कुछ हमारे सुनने वाले भी, हमारे देखने वाले भी फायदा उठा सकें कि व्हाट आर द फ्यू थिंग्स एवरी पेरेंट नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुझे अभी तक आपकी पूरे उसमें से समझ आई है सवाल की, ये है कि जो पहले बात मैंने की है ना कि आप जो चाह रहे हैं ना कि आपके बच्चे करें या रोकना भी चाह रहे हैं, तो फिर वो आप खुद भी ना करें। ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी समा गई है इस फ़ोन में, हमारी हर ज़रूरत इसमें है। जब हम उसको यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर बच्चा हमें देख रहा होता है। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि बेटा इस वक़्त हम इस पे काम कर रहे हैं। एक और भी बात है कि हमने कभी उनको बच्चों के साथ इतनी जो एक कहते हैं ना कि ओपन कम्युनिकेशन ही नहीं की, उन्हें कभी इस तरीके के लेवल पे बात ही नहीं हुई, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश ही नहीं की गई कि ये हम काम करते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है, आपकी कोई असाइनमेंट आप करो, ज़रूर करो, फन करना है करो, ज़रूर करो, बट देयर शुड बी अ लिमिट। डिसिप्लिन खुद पे लगाएँगे, फ़ोन्स को अपने पास से दूर करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे, तभी मुमकिन होगा। ऐसे। आप अगर हर वक़्त अपने फ़ोन पे हाथ में लिए हुए हैं और उसकी चार्जिंग की फ़िक्र है, तो आप ये भूल जाएँ कि बच्चा आपकी बात सुनेगा पहली बात सही। और दूसरा मानेगा भी। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। अपनी प्रैक्टिस करें, जो यंग मदर्स हैं स्पेशली उनको तो आदत ही नहीं डालनी चाहिए। हम्म। उनको बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ ही ना करें। हम्म। पीटीसीएल का दौर अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। ज़्यादा उसी पे ही आपकी बात होनी चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वेट टिल द टाइम बच्चा सो नहीं जाता, बिल्कुल। स्कूल नहीं चला जाता, हम्म। कहीं एंगेज नहीं हो जाता, वही डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। टाइम को मैनेज कर लें और बच्चों के सामने यही शो करेंगे आप बहुत ज़्यादा कम इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो वैसे भी देखती हूँ कि स्क्रॉलिंग से ना वक्त में अजीब एक बेबरकती सी आ जाती है, बिकॉज पता नहीं लगता। कभी अब जिस तरह बच्चा सो भी गया, अक्सर आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर गिल्टी ऑफ दिस, के बच्चा सो रहा है, लेट नाइट फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, हुँ, आपको पता भी नहीं लगता, घंटा सवा घंटा गुजर जाता है। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ना आप सोए, ना आपने रेस्ट किया, और कुछ काम का भी नहीं देखा, बिकॉज जो हुँ। रैंडम हम स्क्रोलिंग करते हैं, वी डोंट कम अक्रॉस एनीथिंग यूजफुल। या तो हम कहें ना, कोई हमने डॉक्यूमेंट्री देखी है, अगर आप किताब भी पढ़ते हैं तो इट्स समवॉट, यू नो, जी, बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ वट एवर वही यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन। एग्ज़ैक्टली अभी ये कि स्क्रोलिंग इज जस्ट अ टाइम किल। टाइम टाइम किलर अभी ये देखें कि पहले दौर में ये होता था कि हमेशा माएँ कॉन्शियस होती थी बेटियों को लेके। व्हेयरएज़ आज के दौर में ऐसा नहीं है, बेटों को लेके भी उतना ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ऐसे ही है। दोनों ही बच्चे हैं और दोनों के सामने दुनिया एक ही तरह से ओपन है। अभी आपकी पेरेंटिंग क्या कहती है, आपका बेटा है, आप क्या चाहती हैं कि वो कैसा बने? कल को अगर आप चाहें कि ये बड़ा होके जब उसकी शादी हो तो इसकी बीवी मेरी इज़्ज़त करे और ये मेरा ख़्याल करे, तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को अपनी माँ की खिदमत करने के लिए उसको राज़ी करें कि आप ऐसे ही। तुम करोगे, आप हम्म। करेंगे, तो मेरा बच्चा देखेगा। बिल्कुल। जब मेरा बच्चा आपको करते हुए देखेगा तो ही सीखेगा। अब और बिलीव उसके यू मी जहन में कि इट मेरे विल, पास यू नो, पिछले दिनों ऑलरेडी बी एब्सॉर्ब बिल्कुल, एज अ वेरी नॉर्मल एक्टिविटी एट होम। बिल्कुल, मैं आपको बात बताने लगी थी कि मेरे पास कुछ अरसा 1 साल तो हो गया अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी, उनकी डेथ हो गई है। तो कुछ मुझे टाइम मिला 2-3 साल अम्मी जी के बहुत क्लोज़ आके उनके पास रहना, उनको अपने पास ले आना और उनके साथ टाइम गुज़ारने का। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ पे कि मुझे एक मौका मिला कि मेरे बच्चों ने दादा-दादी देखे नहीं थे, नाना भी नहीं देखा था। एक नानी थी, हम्म। तो मुझे मौका मिला कि मैं उन्हें अपनी माँ जी की खिदमत करके दिखा सकूँ कि जब कोई बीमार होता है बुज़ुर्ग बड़ा, कैसे खिदमत करते हैं। बिल ये बातों से बच्चे नहीं सीखते। नहीं फिर सीखते जो ऐसे। उन्होंने देखा कैसे अम्मा परेशान होती हैं, भाग रही हैं अम्मा अम्मी जी के लिए, उनको गाड़ी में सैर हम्म। करा रही हैं, उनके साथ गप लगा रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर ये भी ना होता तो मैं तो परेशान होती कि मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि बुज़ुर्गों ऐसे ही है। की खिदमत
कैसे करते हैं। ऐसे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम एक बच्चों ने देखा, उन्होंने रियलाइज किया। वो मेरे साथ कहते थे मामा डोंट वरी, वी आर विद यू, परेशान नहीं होना, ऐसे नहीं करना। लेकिन ये एक प्रैक्टिस हुई, ये एक मुसलसल चीज हुई उनके सामने, उनको पता लग गया। अगर ये होता ही ना, मैं जितना मर्जी किताबों के रेफरेंस दे के, कैरेक्टर्स के रेफरेंस दे के उनको समझाती, उन्हें कभी समझ ये नहीं सिचुएशन आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर ही नहीं सकते। कोई भी, फॉर दैट मैटर, कोई भी एनी ऐसे। सिचुएशन, यू कैन नॉट टेल देम ओनली, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट बेसिकली। कोविड का एक अरसा गुजरा, लॉकडाउन में गुजरा, बच्चे घर में बंद थे, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन होती थी और सोशल इंटरेक्शन रह नहीं गई थी। घर में बस जो घर के 2-4 लोग हैं आपस में जो बात कर लेते थे, दैट वाज इट। एंड व्हेन कोविड या लॉकडाउन फाइनली एंडेड, उसके बाद जब हम एक कहते हैं आज़ाद हुए और लोगों से मिलना शुरू किया, तो मुझे लगा कि बच्चों के जो सोशल इंटरेक्शन के स्किल्स हैं, देव टेकन क्वाइट अ हिट। हालांकि हम घर में किताबें भी बेहतरीन पढ़ते थे, बच्चों के साथ लगता था टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मगर आपने बिल्कुल सही बात की कि वो सिचुएशंस हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर पाते। नहीं कर हम पाते। सोशलाइजिंग घर में कमरे में बंद करके नहीं सिखा सकते, हम बड़ों की इज्जत बताने से बच्चों को नहीं सिखा सकते। वो देखेंगे तो नेचुरली दे आर गोइंग टू वेरी एफर्टलेसली एब्जॉर्ब इट कि हाँ, यही नॉर्म है, यही नॉर्मल तरीका है, और जो हमारी वालदा ने किया कल को शायद हमें भी यही नहीं, आप करना है। देखें ना, जो मदर्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि फीलिंग्स भी शेयर होती हैं। अब एक ग्लूमी माँ बच्चों को हमेशा ही कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। एक शिकायत करने वाली माँ जो हर वक्त एक विक्टिम बनी रहती हैं, वो कभी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। मुश्किलात हर एक की जिंदगी में आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन उनको फेस करना सिखाना, ये भी माँ ही की जिम्मेदारी है। अगर आप जो भी कर रही हैं, आपने जब तक खुद वो काम नहीं किया, आप विश तो कर सकते हैं कि हमारी बच्ची फलानों की बच्ची की तरह बने, लेकिन फिर वो वाली रेसिपी वही करनी पड़ेगी उनके साथ भी, जो कि एक सक्सेस की होती है या बच्चियों की ट्रेनिंग की। और इसमें कोई बहुत ज्यादा ना, आपके पास कोई बहुत ज्यादा पैसे होने की जरूरत है, ना कोई बहुत ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल। आपने किस तरीके से ऑनेस्टी पे ट्रस्ट बिल्ड करके बच्चों को, यू कैन नॉट स्टॉप, बट व्हाट यू कैन डू इज बिकम देयर फ्रेंड्स। शेयर करें, गलत हरकत है, सही हरकत है, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि वी आर विद यू। मैंने अरफा को हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, आई एम योर मदर, लेट मी नो, मुझे बताओ, मैं हूँ। अब ये कॉन्फिडेंस जब आप नहीं देंगे, आप सिर्फ रोकेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर ना जाओ, किधर जा रहे हो, क्या बात हो रही है, इस तरह ये आपके ये सो कॉल्ड रूल्स बच्चे फॉलो नहीं करेगा। ये वहां कहीं टूटेंगे जहां उनको पता है कि माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, हमारे पास टाइम है, वो कैश करेंगे। तो ये चीजें जो होती हैं, हमने जो सिखाना है वो हमने खुद करना है। और पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट 1 मंथ, 1 डे, 1 ईयर, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। हर मरहले पे, हर स्टेज पे शेप और हो जाएगी, आप अगले स्टेज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी पेरेंटिंग खत्म हो ही नहीं सकती। बच्चे की शादी हो जाती है तो वही पेरेंटिंग कोई और नया रोल ले लेती है, हो जाती है। सो वो पेरेंटिंग का सफर कभी भी खत्म नहीं होता। तो आई थिंक कि जो अरफा की बात अगर मैं करूं कि जिस तरीके से अरफा के लिए मैंने चाहा, तो वो मुझे खुद बनना पड़ा, और मुझे इस हद तक बनना पड़ा कि मैं सिर्फ वही बन के रह गई जो मुझे अरफा के लिए चाहिए थी। जो माँ, वो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, और कोई इतने हम कोई सियाने लोग तो है नहीं थे। अल्लाह ने, मुझे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे वैसा बना दिया जैसा उस बच्ची के लिए एक माँ चाहिए थी, वो अल्लाह ने तौफीक भी दी। इंसान क्या होता है, इंसान की कोई औकात नहीं होती, लेकिन यस एक चीज, नीयत, नीयत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी, मान लेने वाले, बात करने वाले। सो अरफा को हमेशा ये सिखाया, बताया, करके दिखाया कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो वालदैन का किरदार सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत करने तक महदूद नहीं है, नहीं है, यू आर शेपिंग अ सोसाइटी। बिल्कुल। अब जिस तरह अरफा भी माशाल्लाह शी वेंट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली, तो उसने सिर्फ अपनी वो आईटी रिलेटेड अचीवमेंट नहीं कैरी की, उसने वालदैन की तरबियत कैरी की इन हाउ शी इज वॉकिंग, हाउ शी इज टॉकिंग, बड़ों से कितनी रिस्पेक्टफुली वो कहने कम्युनिकेट कर रही हैं, क्या पहना ओढ़ा हुआ है। एंड दैट इज हाउ she is not only representing her knowledge or her skill, she is representing a whole nation, and beautifully representing, I must say. तो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, और क्योंकि हम शायद बार बार जिक्र कर चुके हैं माँ के किरदार का, मौका भी कुछ मदर्स डे का है, बात भी उसी हवाले से है, बट आई ऑल्सो बिलीव इट शुड बी मैंशनड कि माँ भी बेहतरीन तरीके से या आसानी के साथ अपना किरदार पॉजिटिवली तब अदा कर सकती है
जब पीछे कहीं ना कहीं जो वालिद हैं, जो हस्बैंड हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियां टुवर्ड्स हिज फैमिली या टुवर्ड्स हिज वाइफ वो पूरी तरह से या बेहतर तरीके से अदा कर रहे होंगे, तो माँ को एक तरफ से क्योंकि ज़हनी सुकून होगा, तो शी कैन बी गुड और क्लोज टू अ परफेक्ट मदर टू हर चिल्ड्रन। देखिए, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पेरेंटिंग में सबसे पहली बात ही ये आती है, इंटर स्पाउस रिलेशनशिप, जिसके अंदर आप जो एक मेल उनका, मैं समझती हूँ कि आज जिस मुकाम पे भी मैं हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ करना साहब। अगर वो मुझे उस तरीके से गाइड ना करते हैं, मुझे वो अपॉर्च्युनिटी ना देते हैं, मेरे पे ट्रस्ट ना करते हैं, मुझे वो कॉन्फिडेंस ना देते हैं, तो मैं तो कुछ भी ना कर पाती। ताई आपको उस तरफ से परेशानी होती, तो शायद यस, हम अपनी ड्यूटीज ऐसा बेहतरीन है। तरीके से ना परफॉर्म ये कर आपकी पाते। बात बिल्कुल ठीक है कि मेंटली अगर आप एट पीस नहीं है। एट ईज नहीं है तो आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि ये एक रोल नहीं है, हर जगह पे अल्लाह ताला ने जो हमें डिफरेंट रोल्स दिए हैं, हम एक एक्टर की तरह है, हमने वो सारे रोल निभाने हैं, स्क्रिप्ट हमारे पास है, अब उसमें कितनी जान डालनी है ये हम पे डिपेंड करता है, किस तरीके से वो कर जाना है। सो वही याद रह जाता है। सेक्रीफाइस की बात आती है हमेशा कि मदर सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन मदर्स देखे ना, जन्नत तो फिर माँ के कदमों तले है। सेक्रीफाइस भी शायद इसलिए मदर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। अगर ये कुर्बानी का जज्बा माँ नहीं करती ना पैदा, तो शायद दुनिया जानती ना कि जज्बा होता क्या है। ये माँ ने करके दिखाया, और माँ बहुत सेक्रीफाइस करती है ना। ये नहीं है कि वो बहुत मुश्किल हालात में हो, वो बच्चा पैदा करती है, उसको पालती है, रातों को जागती है, उसकी ट्रेनिंग करती है, सुबह सवेरे उसको रात को सुलाना उठाना, स्कूल भेजना, किसी भी लेवल पे एक ही जैसी ड्यूटी हो रही होती है। लेकिन इसमें यस, अगर उसके पीछे उसका हस्बैंड खड़ा है, तो जो कुछ वो कर सकती है वो भी दुनिया फतह कर सकती है, अगर एक ऐसे हस्बैंड का सहारा है एक वाइफ के लिए। ऐसे और ये होना चाहिए, और ये एकदम नहीं होता। ये उस हस्बैंड ने भी कहीं होते देखा होगा तो वो एक अच्छा लीडर बनेगा, और उस बेटी ने जो दूसरे घर से आई है उसने भी अपने घर में ये देखा होगा तो ही वो एक अच्छी बहू बनेगी। So the foundation of a home is somewhat the foundation of a society or a nation as सोसाइटी, well. यस यस। Nice. क्योंकि हम बातें जितनी मर्जी कर लें, मुझे लगता है कि आज की दुनिया में किताबें, वो नॉलेज बहुत सारा आ गया है, तरबियत कहीं खो गई है। नॉलेज, नॉलेजेबल हैं, लेकिन ये एक और चीज़ है, नॉलेज से पहले आप इंसान कैसे हैं ये मैटर करता है, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कहती हैं। आप सोचें ना कि अगर मैं अगर खुद हम्बल ना होती तो मैं अरफा को कैसे बनाती? ऐसे मैं खुद अगर तमीज़ से बात ना करती, बदतमीज़ होती, तो मैं अरफा को तमीज़ वाला कैसे बनाती? ऐसे तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो एक माँ के अंदर होती हैं। माँ के जो इमोशंस बेटी जो शेयर करती है, वो कहीं न कहीं माँ ही होती है, उसी की कंटिन्यूटी ऐसे है। तो आई थिंक ये तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, नीयत अच्छी हो। ट्रू। आप सिर्फ़ अपने लिए दुआ करें अल्लाह से। मैं कहती हूँ कि आपको खुद, अब हम अपने लिए ना वो दुआ नहीं करते जो हमें असल में करनी चाहिए। क्या होती हैं? चंद एक छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, जिसमें आप कहें कि या अल्लाह मेरा दिल वसी कर दे, मुझे माफ़ करने वाला बना, मुझे और बेहतर अमल करने वाला बना, वैसा बना जैसा तू चाहता है। इसमें कुछ और नहीं होता। आप अपने मामलात देखें सिर्फ़। आप पर्सनल खुद क्या करते हैं इससे किसी को गर्ज नहीं है, लेकिन जब आपका दूसरे के साथ जहाँ कहीं आपका रिलेशन है, इन एनी कैपेसिटी, वहाँ अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वही आपका पास्ट, आप जाने जाते हैं थ्रू योर पास्ट। एवरी पासिंग डे इज योर पास्ट। अब आप खुद देख लें, कल क्या किया था, परसों क्या किया था, पिछले हफ्ते क्या किया था। तो फिर भी आप कहें कि लोग आपको ट्रस्ट ना करें, तो वो कसूरवार आप ही होते हैं। क्रेडिबिलिटी बनाना, डिजिटल रिकॉर्ड है हम सब। क्रेडिट देखें, क्रेडिबिलिटी बनाना, बना के उसकी हिफाजत करना, बेशक ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, कोई और नहीं करेगा आपके बारे में। सो ट्रू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रिगार्डिंग योर जर्नी एज अ मदर। अब मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगी टुवर्ड्स द अरफा करीम फाउंडेशन जी। कि उसके तहत आप के क्या कहने अचीवमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं। वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट आल्सो। बिल्कुल, अरफा करीम फाउंडेशन समझ लें कि हमारे लिए तो अरफा ही है, और अरफा के ख्वाब, अरफा के मिशन क्या थे? टू मेक पाकिस्तान डिजिटल, डिजिकॉन वैली इन पाकिस्तान, उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। अब हम उन ख्वाबों को कहाँ तक पूरा कर सकते हैं अकेले, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन येस, ऑफ कोर्स, विद इन आवर कैपेसिटी, हम्बल कैपेसिटी, आई मस्ट से, कि मेरे ख्याल में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स इन एवरी एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टिल पेशावर,
हम लोग गए हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एक्सेलेंट। एवरीथिंग, जिस हद तक हमसे मुमकिन हुआ है। और हम रूरल एरियाज में भी गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वाले बच्चे और वो वाली टीचर्स होती हैं जिनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे तो ये अरफा ही कहती थी हमेशा कि अगर जब तक हम अपने इन बच्चों को जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, इनको उसी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे जो यहाँ पे है, तो प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान में नहीं आ नहीं आ सकती। और वो 75-70% है, उनके बारे में सोचना वही अरफा का एम था। उनके बारे में काम करना वो अरफा करीम फाउंडेशन का एम है। और अरफा करीम फाउंडेशन इज डूइंग वंडरफुल जॉब। आरईसी अब देखिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स हैं, बनाए जा रहे हैं, लोगों का कंसेंट लिया जाता है, उन लोगों को ऑनबोर्ड किया जाता है कि दे आर विलिंग। सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया क्या, विलिंगनेस। उसके बाद कैसे होना है, क्या करना है, वो सारा उनको करके दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है। और माशाल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बन रही हैं, जिससे इंतहाई खुशी होती है एक्सेलेंट। और दिल को सेटिस्फेक्शन होती है कि अल्लाह ताला तो नेक अमाल में कभी भी तोल के तो नहीं अजर देता। और उसके हाथों मैं समझती हूँ कि नेक नियति से उठाए गए कदम ही मैटर करते हैं, कि एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी सिमत सही है, डायरेक्शन ठीक है, आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप कर रहे हैं। आप अपनी सेहत सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, आप उठ के भागते हो, जाते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि एक सदका जारी है। और अरफा करीम फाउंडेशन में अरफा फेलोशिप अपकमिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड है, कि जो गैप है उनका एक हमारे जो एजुकेशन, ये जो एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का गैप है, इसको फिल किया जाता है। कि उनको सॉफ्ट स्किल भी सिखाई जाती हैं, टेक के कोर्सेज भी उनको साथ साथ करवाए जाते हैं, कि ताकि स्किल है उनके वैसे काम आनी है। लेकिन देखें ना, एक आप बच्चों को इंटरव्यू करते हैं तो जो चीज़ें आप नोट करते हैं, तो अगर वो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें किसी ने अवेयर ही नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करवाई, तो वो कैसे कर कैसे पाएंगे। कर पाए सो ऐसे कम्युनिकेशन की जहाँ बात करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे हमारे ऑनलाइन बड़े कॉन्फिडेंट ठक ठक जवाब दे रहे हैं, इन पर्सन आप मिलें, आप हैरान होते हो कि ये वही बच्चा या बच्ची है ऐसे जिसके साथ मैं ये सारा कुछ कर रही थी। तो जोर देना चाहिए कि उन्हें उनका एसक्यू बहुत वीक है, सोशल क्वेश्चन, जिसके अंदर बच्चों को उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कैसे हेल्पफुलनेस करनी है दूसरों के साथ, किस किस तरीके से एम्पैथी शो करनी है। एम्पैथी कोई एक ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी ब्रांड से मिल जाएगी। ये तो वो वाली चीज है जो करने से आनी है, ऐसे और करने से कब आएगी, जब होते हुए देखेंगे। सो वो ऑफलाइन तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन इन पर्सन उनको बताना कि आपने कैसे मूव करना है सोसाइटी में, किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से प्रेजेंटेबल होते हैं, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। ये वाला जो है नहीं करनी, ये पार्ट आजकल ज्यादा हो गया है। डेफिनेट मुझे एक इससे वाकया याद आ गया कि अरफा फोर्थ क्लास में थी, आई गेस। तो एक दिन उनके आईटी के टीचर मेरे पास आए, कहते मैम मैंने आपसे बात करनी है जरूरी। मैंने कहा जी सर। अरफा मेरे साथ थी। कहते नहीं आपसे अकेले बात करनी है। मैंने कहा जी सर ठीक है। मैंने कहा बेटा आप जाएं, जाके गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ। अच्छा, वहाँ पे बात हुई तो सर ने कहा कि मैं सारी क्लासेस में जाता हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, लेकिन मैं अरफा की क्लास में आते ही नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ उसको आता है मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं है। ऑब्वियस मैंने कहा सर अभी तक कभी ऐसा हुआ? कहते नहीं ऐसा हुआ नहीं अभी तक, मुझे डर है कि आगे आगे चैप्टर्स जो है ना वो ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं, तो ये कुछ भी इसने ऐसा पूछ लिया जो मुझे मुझे एम्बेरसमेंट होगी। मैंने कहा सर आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाहर गई तो अरफा कहती है सर ने क्या कहा, क्यूरोसिटी तो होती है बच्चों को। मैंने कहा सर को अपने भाई के लिए कोई जॉब चाहिए थी, तो कह रहे थे आपके बाबा के से बात करनी है। कहते अच्छा 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 ठीक है। मैंने सर की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी एक रखनी थी। डिग्निटी मेंटेन और ये देख लें, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि ये माँ के हाथ में है। ट्रू टीचर्स की रिस्पेक्ट अगर मैं नहीं करती और मैं हंसती मजाक उड़ाती कि वो देखो अरफा यूं है वो है, ये माँ के हाथ में होता है। उसको इज्जत टीचर की करना मैंने खुद सिखाया था, हम नहीं, यानी पेरेंट्स ने। तो मैंने अरफा को भी इज्जत रख ली टीचर की, और फिर मैंने किसी और दिन, नॉट एट द सेम सेम डे सेम टाइम टाइम, नॉट मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस ना बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसी बातों बातों मैंने कहा अरफा ये देखो ये मैथ्स, मैंने कहा ये तो हमारे दौर में तो मैथ्स ही और होता था, तुम लोग तो अभी इसी ग्रेड में पढ़ रहे हो। बच्ची भी तो थी ना वो एट द सेम टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बताया उसे। मैंने कहा बेटा ये तो फिर आईटी का भी तो जो आप पढ़ रहे हो, तो ये इन लोगों ने जो मास्टर्स पहले से किए हैं कहाँ पढ़ा होगा। कहती यस मामा ये तो है। मैंने कहा ये तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होगी तो वो तो बड़ा मुश्किल नहीं उनको होती होगी, सर को भी।
तो मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन मैंने कहा बेटा कभी ऐसी बात हो भी जाए ना, तो जब एक चीज उन्होंने पढ़ी नहीं है तो आपने कभी नहीं ऐसा सवाल उनसे पूछना कि जो इस बुक में है ही नहीं, उन्होंने पढ़ाई नहीं। कहती है नहीं 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 मामा बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने कहा बेटा टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है ना। तो उसको मैंने ऐसे उसको समझा दिया कि उसको पता भी नहीं खूबसूरती चला, और वो इशू भी उसी तरीके से एड्रेस किया। एड्रेस कर दिया। और यही मिसाल बड़ी सिचुएशंस पर जाती है जहां आई थिंक कि हमारी सोसाइटी को इस तरह के मेंटर्स की या गाइड करने वालों की ज़रूरत है, बिकॉज हम भी एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं। कभी कभार हालांकि दिल नहीं भी करता तो किसी स्टूडेंट के साथ सख्ती करनी पड़ती है, मगर फिर मैं अपने दिल को ये तसल्ली देती हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रूमिंग ऑल्सो। क्योंकि एक यस बच्चा यस जो ऑनलाइन घर पर बैठ के डिग्री कोई कंप्लीट करे, क्योंकि बेशुमार वर्चुअल या ऑनलाइन प्रोग्राम्स यस हैं, उसमें और एक यूनिवर्सिटी अटेंड करने वाले में बच्चे में ये फर्क होगा। द वन हु हैज बीन अटेंडिंग अ यूनिवर्सिटी, उसके क्लासरूम एटिकेट्स, उसके में बी एथिक्स और उसकी ग्रूमिंग एक वर्सेस दैट चाइल्ड डेफिनेटली बेहतर होगी, और यही बिल्कुल शायद हमारा मकसद होता भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऑन ऐसा ही दिस है। वेरी नोट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच समीना जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ऑनर, आपसे गुफ्तगू करके वो ऑन एयर हो वो ऑफ एयर हो हमेशा अच्छा लगता है, और आज भी बहुत अच्छा लगा। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। और जब जब आप कहेंगे तब तब हाजिर हो जाऊंगी। वी बहुत वुड शुक्रिया। एब्सोल्युटली लव दैट, और अब हम थैंक यू। आपको बार बार तंग करेंगे। इंशाल्लाह। More power to you, more power to the good work that you're थैंक यू doing. सो मच, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आज की ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने तो उससे बहुत सी बातें सीखी हैं, आप लोग भी सीखेंगे। एंड द गुड थिंग अबाउट हैविंग दिस डिजिटल और सोशल मीडिया प्रेजेंस इज दैट यू कैन री वॉच द सेम वीडियो अगेन एंड अगेन। इफ यू लाइक समथिंग यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, या एक थैंक यू के तौर पर आप खामोशी से अपनी मदर को भी इस वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। तो आपकी तरफ से एक वो शुक्रिया अदा करना होगा फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स ऑल मदर्स आउट देयर डू। तो आज अगर ये वीडियो आपने देखी, इसको पसंद किया, हमारी कोई एक बात भी अगर आपको अच्छी लगी, तो मेरी इतनी सी गुजारिश होगी कि अपनी वालदा से, अपनी नानो दादो, कोई बड़ी बहन, कोई बड़ी भाभी हो सकती हैं कि जिनकी आपकी ज़िंदगी में कह लें वालदा का किरदार अदा किया हो उन्होंने, तो उनको एक थैंक यू का मैसेज ही कर दीजिएगा। विद दिस नोट प्लीज कीप और कंटिन्यू वॉचिंग दिस स्पेस। हम इंशाल्लाह और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग मजेदार सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो स्टे विद अस। थैंक यू।